are defined on integers. Defined on integers. A relation R is defined on integers, and relation is xy. xy belongs to R such that x square plus y square is equal to 25. सेट गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स और रिलेशन आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. देन एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स. पहले रिलेशन आर बताना है आपने, फिर उस रिलेशन का इनवर्स बताना है आपने. इनवर्स ऑफ आर as a set of ordered pair and find its domain. Find its domain. What is given? Given है set of integers. A is equal to set of integers. ये given set है और रिलेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 25. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. x square plus y square is equal to 25. We write here y square is equal to 25 minus x square, and we find the value of y. Y is equal to 25 minus x square square root with plus minus, but all x and y belongs to the set A set. X और Y सेट के अंदर होंगे आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो Y आ गया मेरे पास प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर. वी पुट x इज इक्वल टू 0. दिस इज एन इंटीजर. देन दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 एंड दिस बिलोंग्स टू इंटीजर. x इंटीजर है तो y भी इंटीजर होना चाहिए. एक्स वाई बिलोंग्स टू द गिवन सेट. देन वी पुट x इज इक्वल टू 1 1 बिलोंग्स टू इंटीजर. देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 1 स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. वो आपके पास इंटीजर नहीं होगा. Then is equal to plus minus 24 square root. This does not belongs to integer. Then you put x is equal to 2. 2 belongs to integer. Then y is equal to plus minus 25 minus 4 square root, and this is equal to plus minus 21. This does not belongs to integer. Then you put x is equal to 3. This belongs to integer. Then y is equal to plus minus 25 minus 9 square root, and this is equal to plus minus 16 square root, and this is plus minus 4 belongs to integer. This belongs to integer. Then we put x is equal to 4. This is an integer. Then y is equal to plus minus 25 minus 16 square root, and this is equal to plus minus root of 9, and this is plus minus 3 belongs to integer. Then you put x is equal to 5. This belongs to integer. Then y is equal to plus minus 25 minus 25 square root, and this is equal to 0. 0 belongs to integer. 0 पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का कंसिडरेशन नहीं होगा. Then you put x is equal to 6 belongs to integer. Then y is equal to plus minus 25 minus 36 square root, and this is equal to minus 11, and this is an imaginary number. This does not belongs to integer. इससे आगे 6 से लेकर के अप टू सोन इंटीजर्स पे आप जाएंगे तो आपके पास सारे इमेजिनरी नंबर आते जाएंगे. x is equal to 5 से आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि 25 माइनस 25 0 आ गया. 0 इंटीजर है. क्या रिजल्ट बना आपके पास? देखिए उसने लिखा है एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स. तो रिलेशन मैं फॉलो करता हूं यहाँ पे.
R4 relation is equal to xy, x1, x0, y plus minus 5. This is a relation. 1, 24 square root does not belong to integer. 2 plus minus 2 root 21 does not belong to integer. 3, x3, y is plus minus 4. x4, y is plus minus 3. x5, this 0. This with a relation. सेपरेट करके भी लिख सकते हैं आप. सेपरेट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं. R is equal to a relation 0, 5, 0 minus 5. 3 plus 4, 3 minus 4. Next is 4, 3, 4 minus 3. And 5, 0. ऐसे भी लिख सकते हैं. This is a relation. And we find the inverse relation. R inverse. Ordered pair की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें. This is 5, 0 minus 5, 0, 4, 3 minus 4, 3, 3, 4 minus 3, 4, 0, 5. ये आपके पास इनवर्स रिलेशन होगा. ऑर्डर पेयर की पोजीशन को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो वो इनवर्स रिलेशन कहलाता है. तो ये आपके पास R4 रिलेशन होगा ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स. एंड इनवर्स रिलेशन ऑर्डर पेयर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो आपके पास इनवर्स रिलेशन आ जाएगा. देन व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन? डोमेन इसकी बात कर रहा है. डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ द रिलेशन 0, 3, 4, 5. प्लस माइनस भी कंसिडरेशन ले जा सकते हो आप. एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ द रिलेशन? डोमेन ऑफ द इनवर्स ऑफ द रिलेशन प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 3 एंड 0. डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो डोमेन ऑफ द रिलेशन होगा आपके पास. तो यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स से आपने कंडीशन फॉलो करनी है कि एक्स और वाई इंटीजर होगा आपके पास. वहां से जो रिजल्ट मिलता जाएगा उसको कंडीशन की सेटिस्फाई करवाते जाएंगे. उस कंडीशन के ऊपर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो वो सॉल्यूशन में चला जाएगा. और चलिए थोड़ा सा आगे इसी के ऊपर इसी रिलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. तो हमने आपको 3 रिलेशन बताए थे, टोटल 6 बताए थे हमने. आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पिटी रिलेशन. और उसके बाद हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन. तो उसने क्वेश्चन दिया इन द सेट ऑफ इंटीजर्स. ए गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ए बी द गिवन सेट. relation R defined on AB. क्या है रिलेशन? R is equal to AB such that A belongs to set A, B belongs to set A, such that A minus B is even. A minus B is even. Prove that. क्या प्रूव करना है आपने? प्रूव करना है फर्स्ट reflexive relation. A belongs to the relation. Second, if AB belongs to the relation, this implies BA belongs to the relation. AB belongs to the relation, then prove that BA belongs to the relation for all AB belongs to integers. और थर्ड है AB belongs to the relation BC belongs to the relation. This implies AC belongs to the relation for all A, B, C belongs to set A. That is all A, B, C are integers. तो आप पर्टिकुलर इंटीजर की डेफिनेशन इंटीजर्स लेके नहीं चलेंगे. आपने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूं, फर्स्ट रिजल्ट लेता हूं. फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास फॉर रिफ्लेक्सिव.
फॉर रिफ्लेक्सिव। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होता क्या है। ए रिलेशन रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए रिलेशन रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन होता है रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेल्फ का सेल्फ के साथ तो होगा ही होगा, किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे आप लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए कोई भी इंटीजर है, सेट के अंदर है। देन दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर है तो रिलेशन में होगा, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, एलिमेंट सेट के अंदर होता है। ए बिलोंग्स टू जेड, और मैं कह सकता हूं एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बोथ आर करेक्ट। ए बिलोंग्स टू आर, तो आप यहां पुट करेंगे। देन दिस इंप्लाइज ए माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इवन, 0 इज इवन। ए माइनस ए, इस डेफिनेशन पुट करेंगे। फर्स्ट मेंबर ए है, सेकंड मेंबर बी की जगह ए है, तो यहां रिलेशन में पुट होगा ए माइनस ए माइनस ए 0, 0 इज इवन। Therefore, a relation is reflexive. This relation be reflexive. सेल्फ का सेल्फ के साथ, सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन है। ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। व्हाट इज एबीसी, व्हाट इज स्मॉल एबीसी, ऑल आर इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर ले ले आप, 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 0 0, कोई भी इंटीजर पुट करे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, या -1 का -1 के साथ, -2 का -2 के साथ, -3 -3 -4 -5, ऑल आर इंटीजर्स। वो इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब है ये जो रिलेशन है सभी इंटीजर्स के लिए रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा आपके पास, हम लेके चलेंगे लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, और मैं कह सकता हूं ए और बी एलिमेंट्स है इंटीजर्स। सेट ए के अंदर है बट सेट ए सेट सेट इंटीजर है। जब भी रिलेशन होगा तो आपको एक गिवन सेट देगा, वो किसी का भी सेट दे सकता है, रियल नंबर का सेट दे सकता है, इंटीजर का दे सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके पास। ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इवन है तो ए का रिलेशन बी के साथ है, राइट। इसको मैंने लिख दिया माइनस बी माइनस ए इज इवन, बी माइनस ए इज इवन। या आप दूसरे तरीके से ले सकते हो, ए माइनस बी इज इवन, तो इसको लेट कर लो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2k फॉर k बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 का मल्टीपल, इसका मतलब इवन है। यहां से लिखा माइनस b माइनस ए इज इक्वल टू 2k, और इसको लिख दिया b माइनस ए इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस k फॉर ऑल माइनस k बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे लिख सकता हूं। और इसका मतलब है a का रिलेशन b के साथ है तो उसको लिखते हैं a माइनस बी। अब यहां हो गया b का रिलेशन a के साथ, तो उसको क्या लिखे, इसको लिखे बी ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। क्या कहा उसने, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो आप ऐसे लेके चल रहे हैं, ए माइनस बी इवन है, यहां से भी मैं डायरेक्ट कह सकता था दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज इवन, और यहां से मैं कह देता बी का रिलेशन ए के साथ है, या ए का रिलेशन बी के साथ है या बी का रिलेशन ए के साथ आएगा। या फिर आप इस तरह से ले ए माइनस बी इक्वल टू 2k, दिस इज इवन, के इंटीजर है आपके पास। देन माइनस कॉमन दिया तो b माइनस इज इक्वल टू 2k, इस माइनस साइन को उधर ले गया तो b माइनस इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस k, एंड माइनस k इज आल्सो एन इंटीजर। और a माइनस b इज इक्वल टू 2k है, b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2k है। a माइनस b 2k है तो आप लिखते हो a का रिलेशन b के साथ, लेकिन यहाँ b माइनस a इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस k, दिस इंप्लाइज दैट b a belongs to the relation. This relation is symmetric relation. A का रिलेशन b के साथ गिवन है, हमने प्रूव करना है b का रिलेशन a के साथ।
आप कोई भी इंटीजर उठा लें, यहाँ 2 3 ले लें, 2 3 तो 2 माइनस 3 इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 4 ले आप, 2 4 ले, 2 and 4 belongs to the relation। इसका मतलब हो गया 2 minus 4 is equal to -2। दिस इज इवन। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है। अब इसका रेसिप्रोकल करें, 4 minus 2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटीजर इवन। तो आप कोई भी इंटीजर ले ले ऑर्डर पेयर में, उसको पुट करें यहाँ पे, आपके पास रिजल्ट आएगा। प्रूव करना है, आप इसी तरीके से प्रूव करें जैसे मैंने लिखा है। तीसरा केस, थर्ड केस है, थर्ड मेरे पास ट्रांजिटिव, थर्ड केस है मेरे पास ट्रांजिटिव। ये पूरा टॉपिक 12th में एडिटर्स। यहां हम लेके चलेंगे 3 एलिमेंट्स, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड व्हाट इज दिस, ए बी सी आर इंटीजर्स है। देन आप कहते हो ए बी, आप कहते हो ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसका मतलब है ए माइनस बी इज इवन। और बढ़िया लिख देता हूं, मैंने लिख दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर। ए माइनस बी इज इवन। बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, BC belongs to the relation, AB and BC both belongs to the relation। AB रिलेशन में है तो A minus B इवन होगा। अब BC belongs to R है तो यहाँ हो गया B minus C is इवन, और इसका मतलब हो गया B minus C is equal to 2n for all n belongs to integer, for all n belongs to integer। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है तो। AB belongs to the relation है तो डेफिनेशन पुट कर दिया, A minus B इवन है। BC बिलोंग्स टू द रिलेशन है तो हमने डेफिनेशन पुट कर दिया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, तो बी माइनस सी हो गया। यहाँ बी माइनस सी इवन आ गया, उसको लेट कर लिया, ए माइनस बी 2m है, इवन इंटीजर है, बी माइनस सी इवन इंटीजर है। और दो इंटीजर का सम क्या होगा, दो इंटीजर का सम देखिए आप, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। यहां से हो गया a minus b plus b minus c is equal to 2 of m plus n। ये कैंसिल हो गया मेरे पास, a minus c is equal to 2 of m plus n for all, जितने भी m और n हैं दोनों का सम करें वो इंटीजर होगा। m plus n belongs to integer। जब a minus b इवन है तो आप कहते हो a b belongs to the relation। जब b माइनस इवन है तो आप कहते हो BC बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब यार a माइनस सी इज इक्वल टू इवन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया AC बिलोंग्स टू द रिलेशन, और यही प्रूव करना था। इसका मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n, इसका मतलब AC बिलोंग्स टू द रिलेशन, AB बिलोंग्स टू द रिलेशन, BC बिलोंग्स टू द रिलेशन, दिस अप्लाई दैट AC बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करके दे दिया। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आता है 12th क्लास में, लेकिन आपको आना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। सेल्फ का सेल्फ के साथ, सेल्फ का सेल्फ के साथ मतलब सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी एलिमेंट उठा ले, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सेट से कोई भी आप इंटीजर्स, कोई भी एलिमेंट आप कलर करेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर सेल्फ का सेल्फ के साथ रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्री के अंदर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए एंड बी आर डिफरेंट, but what is A and B? Both are integers। Then 3 minus 6 ऑड में चला गया, राइट। मेरे को सिर्फ वो एलिमेंट्स उठाने, वो इंटीजर्स का अलग करूं मैं जिनका डिफरेंस इवन आए। तो A का रिलेशन B के साथ है तो मैं प्रूव करके दूंगा B का रिलेशन A के साथ, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। जो ऑर्डर्ड पेयर, जो इंटीजर आप उठाएंगे उसका इनवर्स रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। और ट्रांजिटिव के अंदर 3 एलिमेंट लेंगे आप, ऑल द 3 एलिमेंट्स गिवन बिलोंग्स टू द गिवन सेट, देन फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो डेफिनेशन ए माइनस बी इज इवन। बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन तो डेफिनेशन है बी माइनस सी इज इवन। और दो इवन नंबर का सम इवन ही होगा आपके पास, दिस ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन, बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन। दो इवन नंबर का सम, बी से बी कैंसिल हो गया, दो इवन नंबर का सम
इवन होगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ m प्लस n। m प्लस n इंटीजर है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इंप्लाई दैट a माइनस c इक्वल टू 2 ऑफ m प्लस n, और m प्लस n को मैं k कह देता हूँ, लैम्डा कह देता हूँ। तो मेरे पास आ गया a माइनस c इज इक्वल टू 2k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू k इज इक्वल टू m प्लस n, ऑल आर बिलोंग्स टू z। a माइनस c इज इक्वल टू इवन। जब a माइनस b इवन है तो मैं कहता हूँ a b बिलोंग्स टू द रिलेशन, b माइनस c इवन है तो मैं कहता हूँ b c बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब यहाँ a माइनस c इवन है तो क्या आया, a c बिलोंग्स टू द रिलेशन। देन वी डिफाइन ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ का सेल्फ के साथ होगा, सिमेट्रिक का मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, और ट्रांजिटिव का मतलब है ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। दिस इंप्लाई दैट ए का रिलेशन सी के साथ होगा। तो रिलेशन से रिलेटेड जो कंडीशंस थी वो मैंने सभी आपको डिस्कस कर दी हैं। आप एक बार ईमानदारी से, बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं रीड किया वो एक बार जरूर पढ़े इसमें से। अब रिलेशन के बाद आता है फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान करें आप। अगर आपको रिलेशन आता है तो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको रिलेशन नहीं आता या आपने पढ़ा नहीं है तो आप प्लीज पहले पढ़ लें व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन कुछ भी नहीं है आपके पास, दोनों एनएमपीटी सेट के अगर कार्डियल प्रोडक्ट करते हैं उसका सबसेट, उस कार्डियल प्रोडक्ट से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर होना चाहिए तो वो रिलेशन को डिफाइन करेगा। एनी सबसेट ऑफ द कार्डियल प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सभी चीजें हमने आपको डिफाइन करके बताई। उस रिलेशन के अंदर कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा, उसमें डोमेन, रेंज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, थ्री टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। तो 11th क्लास में तो आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पिटी रिलेशन डिफाइन होता है। लेकिन हमने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताया क्योंकि एक आधा क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता भी होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा श्योर है वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद आता है फंक्शन। ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। क्या होता है फंक्शन, देखिए, लेट x and y be two non-empty set, x and y be two non-empty set। ध्यान देना जरा। Then the unique association, the unique association of each and every element, each and every element of set X with the element of set Y। यूनिक एसोसिएशन लिखा है मैंने, ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। The unique association of each and every element, each and every element of set X with the element of set Y, but some element in set Y, some element in set Y having no pre-image, no pre-image। ध्यान दें, एक्स और वाई कोई भी दोनों एनएमपीटी सेट है। सेट के बारे में आप जानते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स आपके पास ए बी सी डी, दिस विद द एक्स। वाई 2 3 4 5 6 7, दे आर नोन एज नॉन एम्पिटी सेट। मैंने लिखा है यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स
with the element of set y, with the element of set y, but some element in set y having no pre-image. देखिए यहां से आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x आपके पास, ये y है, x टू y बात कर रहा हूं मैं, ये फंक्शन आपके पास, इसको लिखते हैं f such that x to y, f such that x to y। यहाँ पे स्मॉल x एलिमेंट है, बिलोंग करेगा सेट x में, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट y है, बिलोंग करेगा सेट y। एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट x, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट y। देन एलिमेंट ऑफ सेट x is a b c d, this 2 3 4 5 6 7। यहां हमने फंक्शन लिखा f such that a related to 5, b related to 7, c related to 2, d related to 3। एसोसिएशन है, a की इमेज 5 है, a की इमेज 5, a की एसोसिएशन 5 के साथ है, a की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज a है। ध्यान देना जरा मैं वर्ड जो बोल रहा हूं, a की एसोसिएशन 5 के साथ है या एलिमेंट a की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज a है, a की एसोसिएशन 5 के साथ है, b की एसोसिएशन 7 के साथ है, c की एसोसिएशन 2 के साथ है, d की एसोसिएशन 3 के साथ है। Each and every element of set x with the element of set y, but some element in set y having no pre-image। जो सर्कल की है मैंने दो एलिमेंट्स सेट y के हैं, वो 4 और 6, एलिमेंट 4 and 6 belongs to set y having no pre-image, having no pre-image। एलिमेंट 2 की प्री इमेज c है, एलिमेंट 3 की प्री इमेज d है, एलिमेंट 5 की प्री इमेज a है, एलिमेंट 7 की प्री इमेज b है। अगर आप y to x बात करते हो तो, राइट? या a की एसोसिएशन 5 के साथ है, या a की इमेज 5 है, एलिमेंट b की इमेज 7 है, एलिमेंट c की इमेज 2 है, एलिमेंट d की इमेज 3 है। मैंने यही लिखा है, यूनिक एसोसिएशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x। इसका मतलब सेट x का कोई भी एलिमेंट, सेट x का कोई भी एलिमेंट आपके पास क्या नहीं होगा, फ्री नहीं बचेगा, ब्लैंक नहीं बचेगा, जिसकी एसोसिएशन नहीं होगी। यूनिक एसोसिएशन बोलिए उसने, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट x के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एसोसिएट होंगे विद द एलिमेंट ऑफ सेट y, बट सम एलिमेंट इन सेट y हैविंग नो प्रीमियस। लेकिन सेट y में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी एसोसिएशन नहीं होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। और देखिए इसी के ऊपर और चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें आप। और एग्जांपल लेता हूं मैं, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन आनी चाहिए आपके पास। मेरे पास है ये फंक्शन सेट x है, ये सेट y है, एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4, ये एलिमेंट है मेरे पास a b c d e। ये फंक्शन आपके पास x to y, दिस इज f x to y। यहाँ फंक्शन लिखा f such that 1 की इमेज c है, 2 की भी c है, 3 की भी c है, 4 की भी c है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 की इमेज c, एलिमेंट 2 की भी c, 3 की भी c, 4 की भी c। Each and every element of set x with the element of set y, but some element in set y having no pre-image। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं सेट y के अंदर जिनकी कोई प्रीइमेज नहीं है। दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, राइट? और ध्यान दे थोड़ा सा, जब भी फंक्शन में ऑर्डर पेयर लिखा है, जब भी फंक्शन में ऑर्डर पेयर आपके पास a b c d, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इनपुट x जो है इसको हम इनपुट कहते हैं, इनपुट, और y
जिसने पार्टिसिपेट किया, दिस इज आउटपुट। आउटपुट में कौन कौन इंक्लूड हुआ? 2, 3, 5 और 6। 4 और 7 आउटपुट में नहीं है। आपने x की वैल्यू a पुट की तो आपके पास y कितना आया? 5 आया। आपने x की वैल्यू b पुट की, आपके पास आउटपुट 7 आया। आपने x की वैल्यू c पुट की, आपके पास आउटपुट 2 आया। आपने x की वैल्यू d पुट की, आपके पास आउटपुट 3 आया। इनपुट, जब आप कुछ इनपुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा। तो जो इनपुट कर रहे हो दिस इज कॉल्ड डोमेन, और जो आउटपुट आ रहा है दिस इज कॉल्ड रेंज। मतलब क्या हुआ? x की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगी, और y की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। आप ये कह रहे हो y इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन हुआ मेरे पास। अब देन दिस x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, और x क्या है? इनपुट है। जब तक आप कुछ डालोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड करता है x के ऊपर, कि अगर x में चेंज होगा तो ही y में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए y इज इक्वल टू fx, हमेशा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एंड द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड, वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड is always independent variable, and the variable on the left hand side is always dependent variable. अगर मैं लिखता हूँ y is equal to f of z, then this z is independent variable and y is depend on z. y किस पे डिपेंड करेगा? z के ऊपर करेगा। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन समझे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है और फंक्शन कुछ भी नहीं है। यूनिक एसोसिएशन होगी आपके पास। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x with the element of set y, but some element in set y having no premise। और चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं आपको, इसी डेफिनेशन को और एलोबरेट करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दें। सेट x, सेट y, सेट x का एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 3, 4। सेट भी है मेरे पास P, Q, R, राइट। यहां पे लिखा मैंने, ये सेट x है, ये सेट y है। सेट x 2, 3, 4, यहां हो गया P, Q, R। यहां लिखा था मैंने डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 इनपुट के, सेम इमेज है y के अंदर। 2 का रिलेशन सेट x का एलिमेंट है 2, 3, 4, सेट y का एलिमेंट है P, Q, R। मैंने यहां फंक्शन लिखा f such that 2 is related to R, 3 related to P, 4 is related to Q, 2 is related to P, 2R, 2P, 3P and 4Q। ये फंक्शन लिखा है मैंने। एलिमेंट 2 की दो इमेजेस है। एलिमेंट 2 belongs to set X have two images, that is R and P। एलिमेंट 2 जो है वो बिलोंग करता है X के अंदर सेट में, एंड दे हैव टू इमेजेस R एंड P। 2 की इमेज R भी है, 2 की इमेज P भी है। लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? यूनिक एसोसिएशन। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। देयरफॉर f such that x to y not a function। therefore f such that x to y this is not a function।
ये फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट 2 आपकी डेफिनेशन है यूनिक एसोसिएशन। यहां तो एलिमेंट 2 की दो एसोसिएशन है, 2 की एसोसिएशन आर के साथ भी है, 2 की एसोसिएशन पी के साथ भी है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। यूनिक एसोसिएशन वर्डिंग का यूज करें आप, यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट विद द गिवन सेट, राइट। तो यहां एलिमेंट 2 की दो इमेज आई मेरे पास आर एंड पी, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद द एलिमेंट ऑफ सेट वाई, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। और किस केस में नहीं होगा फंक्शन, देखिए और देखते हैं, यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। एक सेट एक्स लिया हमने 1 5 4 3, सेट वाई लिया हमने ए बी सी, ये सेट एक्स आपके पास, ये सेट वाई है। सेट एक्स का एलिमेंट है 1 3 4 और 5, ये आपके पास सेट के एलिमेंट है ए बी सी। फंक्शन मैंने लिखा एफ सच दैट 1 की एसोसिएशन बी के साथ है, 3 की एसोसिएशन ए के साथ है, 5 की एसोसिएशन सी के साथ है, ये फंक्शन लिखा। बट एलिमेंट 4 belongs to set X have no image, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, यूनिक एसोसिएशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, सेट एक्स का हर एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो देयरफॉर f is such that x to y not a function, this is not a function। फंक्शन की डेफिनेशन यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद द एलिमेंट ऑफ सेट वाई, बट सम एलिमेंट इन सेट वाई हैविंग नो प्री इमेज। तो ये हमने दो एग्जांपल लिए। यहां अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर रिपीट हो जाता है, ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट मेंबर रिपीट हो जाता है तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यूनिक वर्ड खत्म हो जाएगा वहां पे। और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का हर एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट इन दिस केस एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट एक्स हैव नो इमेज, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो पहले आपको डेफिनेशन पता हो, यूनिक एसोसिएशन होगी ईच एंड एवरी एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। अगर हम यहाँ कह देते हैं 1 की एसोसिएशन ए के साथ है तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट 1 की एसोसिएशन ए के साथ भी है और 1 की सी के साथ भी है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर रिपीट हो गया 1 की दो इमेजेस होगी, 2 इमेजेस, जबकि आप कहते हो यूनिक इमेज, राइट। उस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है, सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट जिसकी इमेज नहीं बनती हो, जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करा कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का, तो फंक्शन नहीं होगा। सेट वाई में एसोसिएशन के अंदर ब्लैंक हो सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एसोसिएशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। किसमें? सेट वाई में। इनपुट के अंदर नहीं होगा, इनपुट में सारे पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होंगे विद द एलिमेंट ऑफ सेट वाई, बट सम एलिमेंट इन सेट वाई हैविंग नो प्री इमेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इनपुट, ऑर्डर्ड पेयर
ये आपके पास f बना, f फंक्शन यहाँ पे बना, इसकी बात कर रहा हूँ 1c 2c 3c और 4c, ये फंक्शन बना मेरे पास। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन ऑफ फंक्शन d ऑफ f लिखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है, दिस इज इनपुट, इसका मतलब सेट एक्स के एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे, सेट एक्स के एलिमेंट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर, रेंज ऑफ द फंक्शन एलिमेंट सी, जो कि जिसकी प्रीमेज है, सी की प्रीमेज 1 है, सी की प्रीमेज 2 है, सी की प्रीमेज 3 है, सी की प्रीमेज 4 है। So this is range of the function. And what is codomain? All the elements of set Y. Codomain. Codomain. Codomain आपके पास A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. सेट Y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन में कहलाएंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन इनपुट होगा, सेट एक्स के एलिमेंट्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब इनपुट एक्स की वैल्यू है। Y आप लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, दिस ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी? हमेशा एक्स की वैल्यू होगी, और रेंज ऑफ द फंक्शन हमेशा वाई की वैल्यू होगी। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड मेंबर को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, दे आर नोन एज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आइदर दे आर पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन और नॉट, लेकिन वो कोडोमेन कहलाएगा आपके पास। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, अगर एक्स में चेंज होगा तो ही वाई में चेंज होगा। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y is called डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड करेगा x के ऊपर, y is equal to fx। इनपुट आप डालोगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होगा वो डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा वो डिपेंड होगा राइट वेरिएबल्स के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, इमेज, प्रीबेस, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। कितने मेथड से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, let x is equal to a b c, y is equal to p q r, then function f such that a q b p c r. This is a function. Unique association of each and every element of set x with the element of set y. Therefore, this is called a function and this is roster form. Second is set builder form. Set builder form. Set builder form. In this method, we write f such that x, y, x belongs to, कोई भी कहते हैं आप नेचुरल नंबर है, y belongs to नेचुरल नंबर, and x plus y
is greater than equal to 0. X plus y is greater than equal to 0. Or x belongs to capital X, y belongs to capital Y, and x is 4 less than y. x सेट A के अंदर है, y सेट Y के अंदर है, और यहाँ कह रहे हैं आप x is 4 less than y. This is set builder form. That is definition. Third is y formula. Y formula. Y is equal to fx. This is the formula. Let y is equal to 5x minus 1. X belongs to natural value. आप x की नेचुरल वैल्यू पुट करते जाए, सेट ए आपके पास नेचुरल नंबर का, तो y आपके पास नेचुरल ही फॉलो करना है आपने. ये y यूजिंग द फॉर्मूला है. इनपुट डालते जाए, आउटपुट आता जाएगा आपके पास. देन फोर्थ इज y एरो डायग्राम. y एरो डायग्राम. अभी बताया था हमने, ये सेट x है, ये सेट y है, ये एलिमेंट्स a b c है, ये एलिमेंट्स p q r है. इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. A की एसोसिएशन Q के साथ है, B की P के साथ है, और C की R के साथ है. दिस इज कॉल्ड बाय एरो डायग्राम. राइट. उसके बाद आता है मेरे पास बाय ग्राफ. नंबर 5, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं. नंबर 5 इज बाय ग्राफ. बाय ग्राफ. और बाई ग्राफ में क्या रहता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट. कोई भी कर्व दे देगा, कोई भी कर्व गिवन आपको. देखिए क्या क्या है. ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉलो करना है आपने. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. राइट. बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये कोई आपके पास पैराबोलिक पाथ है. पैराबोलिक पाथ. राइट. ये आपके पास वो लाइन सिस्टम है. ये कोई लाइन नेगेटिव डायरेक्शन की, ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन की लाइन है. ये कोई सर्कल आपके पास, ये कोई सर्कल है. एक ग्राफ और बना लेते हैं. ये कोई आपके पास राइट हैंड पैराबोला है. ये 4 कर्व डाली मैंने. उसने कहा बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्या आएगा मेरे पास, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोला है मैंने. वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन. दिस इज वर्टिकल लाइन. दिस इज वर्टिकल लाइन. आप लेफ्ट में ड्रॉ करें, राइट में करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. दिस इज वर्टिकल लाइन टेस्ट. दिस इज वर्टिकल लाइन टेस्ट. अगर किसी कर्व के अंदर वर्टिकल लाइन उस कर्व को सिंगल पॉइंट पे काटती है, सिंगल पॉइंट, दिस इज अ फंक्शन. दिस इज ए फंक्शन. यूनिक एसोसिएशन की बात कर रहे हो आप. वर्टिकल लाइन है, सिंगल पॉइंट पे काट रही है, दिस इज ए फंक्शन. वर्टिकल लाइन है, 2 पॉइंट्स पे काट रही है, यहां और यहां, दिस इज नॉट ए फंक्शन. कोई भी वर्टिकल लाइन किसी कर्व को मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, मोर देन 1 पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा. मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है इस पाथ को, दिस इज नॉट ए फंक्शन. कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है. ग्राफ बनाया उसने, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पूछेगा आपसे कौन सा जो कर्व है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. उसके लिए आप वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो करेंगे. वर्टिकल लाइन टेस्ट. जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है उस पे आप लेफ्ट या राइट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें. ये तो राइट में ड्रॉ किया, लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे तो भी फंक्शन नहीं है. इस पे ड्रॉ करेंगे
तो ये फंक्शन है, इधर ड्रॉ करेंगे तो भी फंक्शन है, इस पे इधर ड्रॉ करेंगे तो भी फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। मोर देन वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ कारों को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन है यूनिक एसोसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हो सकता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपके पास उसके पास आ गई, तो एक एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो सकती। देयरफॉर वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, अगर कोई कर्व उसको मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है वर्टिकल लाइन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। फर्स्ट और सेकंड दोनों ये कर्व रिप्रेजेंट करती है फंक्शन को, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन, इसलिए ये आपके वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? रोस्टर मेथड, सेट वेल्डर फॉर्म, थर्ड बाय फॉर्मूला, फोर्थ बाय एरो डायग्राम और फिफ्थ बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये 5 टाइप हमने बताई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। लेट y is equal to ax plus b is not equal to 0. This is a polynomial function. Y is equal to ax square plus bx plus c is not equal to 0. Y is equal to ax cube bx square cx plus d where a is not equal to 0. पॉलिनोमियल फंक्शन को आपके पास रिप्रेजेंट करेगा। दे आर ऑल कॉल्ड ऑफ द फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद आता है आपके पास रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन p अपॉन क्यू, रैशनल फंक्शन f(x) is equal to px upon qx. Qx is not equal to 0. Qx is not equal to 0. This is called rational function. This is called rational function. Qx 0 के इक्वल नहीं होगा आपके पास। fx is equal to 3x plus 2 upon x plus 1. x is not equal to -1. x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। fx is equal to x square plus 2x plus 2 upon x minus 2 का होल स्क्वायर। x is not equal to, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। दे आर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल फंक्शन। p अपॉन क्यू की जो फॉर्म होगी वो रैशनल फंक्शन की होगी। उसके बाद आता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। नंबर थर्ड इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ए फंक्शन f(x) is said to be, a function f(x) is said to be odd function if f of minus x is equal to minus fx. x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, such type of function are called odd function. For example, let f(x) is equal to x cube minus 3x x cube
minus 3x. Replace x by minus x. x by minus x. x की जगह माइनस x लिखा, x की जगह माइनस x लिखा, x की जगह माइनस x लिखा, तो मेरे पास आ गया माइनस का x क्यूब और प्लस का 3x। यहां से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया x क्यूब माइनस 3x, और मेरे पास ये क्या बना, यहां से ये बना माइनस fx। ये सारा fx है आपके पास, और ये है f of minus x. f of minus x is equal to minus fx. Such type of function are called odd function. fx is equal to